Chapter 9 Ray Optics 12th Physics Important question for board exam. Question is, for which color the refractive index of glass will be minimum. तो रेड कलर के लिए यहाँ पर है, इसकी वेवलेंथ जो होती है ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम होता है. द रीज़न फॉर द साइन ऑफ ए डायमंड इज, the correct option is total internal reflection. Truck driver's side mirror is convex. The image found by a simple microscope is virtual and bigger. If two lenses of focal length f1 and f2 are placed in contact, then the combined focal length will be. The formula for combined focal length is 1 upon f equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2. तो इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, इसको इधर कर देंगे और ये जो नीचे वाला है इस तरह से इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे. अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर हमको लिखना है. ये 1 अपॉन एफ़ की वैल्यू, यदि हमको एफ़ की वैल्यू चाहिए तो हम इसको ऊपर कर देंगे. तो इस तरह से ये वाला आंसर सही हो जाएगा. The unit of power of a lens is diopter D. The minimum distance of distinct vision for a healthy eye is 25 centimeter. The air bubble inside water act like a concave lens. And this is the match the columns. Astronomical telescope, its magnifying power is minus FO upon FE. Simple microscope, this is 1 plus D upon F. Compound microscope, minus VO upon UO 1 plus D upon FE in bracket. Lens maker's formula, this is lens maker's formula. In equal, it is 1 upon f. Refraction formula, this is mu minus 1 upon r equal to mu upon v minus 1 upon u. Mirror formula, this is 1 upon f equal to 1 upon v plus 1 upon u. Lens formula, 1 upon f equal to 1 upon v minus 1 upon u. Find the refractive index of the medium whose critical angle is 45 degree. We know that mu equal to cosec C, critical angle. The angle is 45 degree and value of cosec 45 is square root 2 and its value is 1.4. Hence the refractive index of medium is 1.4. What will be the magnifying power of a simple microscope with a focal length of 10 centimeter when the image is formed at infinity? The magnifying power at infinity for a simple microscope is m equal to d upon f. The value of d is at least distance of distinct vision, that is 25, and the value of focal length f is 10. If we divide, we get 2.5. The magnifying power is 2.5. Next, a vessel of 10 centimeter depth is filled with a liquid. The depth of the coin kept on its bottom is measured as 8 centimeter. Then find the refractive index of the liquid. We know that refractive index equal to ये real depth upon ये apparent depth होता है. Real depth की वैल्यू यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पर जो apparent depth है 8 है. डिवाइड कर देंगे तो 1.25 ये इसका refractive index हो जाएगा. Next question is, write Snell's law. For a monochromatic light ray and any two media, there is a definite ratio between the sine of the angle of incidence and the sine of the angle of reflection, which is called the refractive index of second media with respect to first media, and its formula is 1 mu 2 equal to sin I upon sin r. और इसकी वर्डिंग इसी फार्मूले से आप यहाँ पर बना सकते हैं. Next question, what is the power of a lens? Write its unit. Power of lens, the reciprocal of focal length of lens
measured in meter is called its power. The formula is P equal to 1 upon F in meter and 100 upon F in centimeter. The unit of power of lens is diopter. It is denoted by capital D. Why is concave mirror used for saving? Because when the object is between the focus and pole of concave mirror, the image formed is big, virtual and erect. Next question. Diamond is shiny. Why? The refractive index of diamond is 2.47, which is more, and the critical angle is 24 degree, which is low. When light enters the cut surface of diamond, it undergoes total internal reflection again and again, due to which the shine of the diamond increases. An object 3 cm in size is placed 14 cm in front of a convex lens of focal length 21 cm. Describe the image formed by the lens. Here focal length is 21 cm. Length of object, distance of object is 14 cm and it is always negative. So u equal to minus 14 cm. H equal to 3 cm its height. We know that from lens formula 1 upon f इक्वल टू 1 upon v प्लस माइनस 1 upon u. इनकी वैल्यू पुट करना है. f की वैल्यू ये 21 कर दी है, v की वैल्यू हमको पता नहीं, यहाँ पर u की वैल्यू -14 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे +1 14 को, तो 1 upon 21 माइनस 1 upon 14 हो जाएगा इक्वल टू 1 upon v. अगले स्टेप में हम देखते हैं इसका एलसीएम लेंगे. यहाँ पर 21 और 14 का एलसीएम 42 आएगा और ऊपर 2 - 3 इक्वल टू 1 upon v हो जाएगा. अब इस v को सीधा कर देंगे, ऊपर लिखेंगे तो ये -1 upon 42 आया. v इक्वल टू -42 सेंटीमीटर. ये इसका जो है इमेज का डिस्टेंस आ गया. अब हमको बताना है कि इमेज कैसा फॉर्म होता है, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालेंगे. तो लेंस के लिए m इक्वल टू v अपॉन u होता है. यहाँ v की वैल्यू -42 है और u की वैल्यू -14 है. यहाँ पर 3 आया. तो जब ये 1 से ज़्यादा आता है तो इमेज लार्जर बनता है, और यदि ये प्लस में, इसका सामने का चिन्ह प्लस में है, इसका जो साइन है, तो ये कैसा बनेगा, इरेक्ट और वर्चुअल. यदि यहाँ माइनस में होता इसका साइन तो रियल और इन्वर्टेड बनता. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल एंगल? एस्टैब्लिश इट्स रिलेशन विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. When light ray enters from a denser medium to a rarer medium, then the value of angle of incidence at which the angle of refraction is 90 degree is known as critical angle. अब यहाँ पर हमको ये फिगर ड्रॉ कर लेना है. यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल का है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री का है. यहाँ जो नीचे ये डेंसर मीडियम है, ऊपर जो है ये क्या है, रेरर मीडियम है. तो सपोज अ रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम ग्लास इनटू रेरर मीडियम एयर, देन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ. ये ग्लास से एयर में जा रही तो इसको लिखेंगे g/μ a इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाएंगे. तो यहाँ पर ये g के रिस्पेक्ट में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो एयर के उसमें करेंगे, रिस्पेक्ट में करेंगे. तो a को इधर करेंगे, g को इधर करेंगे, तो ये अपॉन में लिखते हैं. इधर कुछ चेंज नहीं होगा. अब हम क्या करेंगे, अपॉन को ऊपर लिख दिए हैं तो ये भी उल्टा होगा. साइन आर ऊपर हो गया, साइन आई नीचे हो गया. अब यहाँ पर कंडीशन है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल की इक्वल है, सी के इक्वल, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 डिग्री. तो इस वैल्यू को हम पुट करते हैं. यहाँ ए म्यू जी उसी तरह लिख दिए. साइन आर है तो साइन 90 कर दिए, और साइन आई है उसकी जगह सी लिख दिए. ये वैल्यू पुट करना है. अब इसको हम जनरल कंडीशन में मान लें तो म्यू लिख देंगे, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं नॉर्मली. 1 अपॉन साइन सी हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इस तरह से कॉसेक सी हो जाएगा म्यू इक्वल टू. इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. देखिए इसमें लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स प्लेस्ड इन एयर फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू 1.5 and radius of curvature is 20 centimeter and the distance of the surface from the light source is 100 centimeter, then where will the image be formed? तो यहाँ पर हमको दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर. ये हम यहाँ से पा लेंगे, ये है.
इसके बाद यहाँ पर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। यहाँ पर ये जो u की वैल्यू है, लाइट सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को माइनस में लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर रिफ्रैक्शन फार्मूला होगा, तो ये हो जाएगा म्यू -1/r इक्वल टू म्यू अपॉन v -1/u, ये फार्मूला होता है। इसमें हम म्यू की वैल्यू पुट कर दिए हैं, आर की वैल्यू पुट कर दिए हैं, यहाँ म्यू की वैल्यू पुट कर दिए, इस तरह से यहाँ भी यू की वैल्यू पुट करेंगे। अब ये देखिए 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5, नीचे 20 रहेगा। और ये जो है ये माइनस माइनस प्लस होगा तो इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो -1/100 हो जाएगा। और बाकी ये -1.5/v ये बचा ही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका एलसीएम लेंगे तो 200, और इस तरह से 5 - 2 इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा 1.5 इधर तो है ही, कॉपी कर देना है केवल ऊपर का। और यहाँ पर देखिए 3/200 इक्वल टू 1.5 v की वैल्यू हमको चाहिए तो v को इधर ट्रांसपोज कर दिए, इसको इधर कर दिए, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ द टू फेसेस ऑफ ए biconvex lens are 10 centimeter and 15 centimeter respectively, and its focal length is 12 centimeter. Then find the refractive index of the glass. Here f equal to 12 centimeter focal length है यहाँ पर, और ये कॉन्वेक्स है तो इसलिए इसको पॉजिटिव में लिखेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, तो RM इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट रहेंगे। अब यहाँ पर हमको जो है लेंस मेकर्स फार्मूला यूज करना है। 1/f इक्वल टू म्यू -1, 1/r1 -1/r2 इन ब्रैकेट। अब यहाँ f की वैल्यू हम 12 रख दिए, म्यू -1 कर दिए, r1 की वैल्यू 10 है और r2 की वैल्यू -15 है। ये वैल्यू पुट करेंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 2/30। अब यहाँ पर जो है यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5/30 और इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/6। अब हमको क्या करना है, इस 6 को ट्रांसपोज कर देते हैं उस साइड, तो ये 6 इधर जाएगा तो 6/12 हो जाएगा तो 1/2 म्यू -1 हो जाएगा। इसको यदि हम डिवाइड कर देंगे तो 0.5 हो जाएगा, -1 को इधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। इस तरह से म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन एयर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ इन वाटर? Refractive index with respect to water is 1.33 and refractive index of air glass is 1.5। यहाँ पर हमको रिफ्रैक्शन फार्मूला जो लेंस मेकर्स फार्मूला है उसको अप्लाई कर देते हैं। तो 1/f इक्वल टू म्यू -1 और 1/r1 -1/r2 है। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए एयर के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं, तो ये 1/20 0.5 इसको माइंड कर देंगे, 1/r1 -1/r2 ये फर्स्ट हो गया। वाटर के लिए हम क्या करेंगे, 1/f 1.5 विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है तो 1.33 -1 और ये उसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। अब यहाँ देखिए 1.33 को इधर ट्रांसपोज कर दिए तो इस तरह से आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो इसको जब हम इसमें माइनस करेंगे तो 0.17 1.33 और ये वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9 और ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो देखिए 1/20 है तो ये 1/20 लिख दिए, इसमें 1/f है तो 1/f लिख देना है। फिर यहाँ देख लीजिए 0.5 है तो ये 0.5 लिख दिए, और ये आया हमारे पास 1.9, तो यहाँ पर 1.9 या 17/133 लिख दिए, कोई भी लिख सकते हैं, 1.9 भी 1/9 भी लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सॉल्व करने पर 78.2 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी वाटर में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू शीट्स ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 is the same. A biconvex lens is made from this whose focal length is 20 centimeter. What will be the radius of curvature? तो यहाँ radius of curvature है, निकालना है। f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, यहाँ r1 की वैल्यू r है और r2 की वैल्यू -r, क्योंकि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैग्नीट्यूड सेम है, थोड़ा डायरेक्शन अलग है। म्यू की वैल्यू 1.5 है। यहाँ हम लेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं, 1/20 इक्वल टू 1.55 -1, 1/r1 -1/r2 होता है, तो r1 की वैल्यू है r2 की वैल्यू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2/r, और इसमें से ये जो 1 है और 1 माइनस हो जाएगा तो 0.55।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस r को हम इधर ट्रांसपोज कर दिए, 20 को इधर ट्रांसपोज कर दिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका। द क्वेश्चन इज कॉन्वेक्स लेंस विथ फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ ए कॉन्केव लेंस विथ ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। Find the focal length of lens formed by this combination and tell whether this lens will be diverging or converging। तो यहाँ पर फोकल लेंथ दिया 30 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसके बाद फोकल लेंथ दिया 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये फोकल लेंथ जो दिया है एक कॉन्वेक्स का दिया है तो पॉजिटिव ले लिए, ये कॉन्केव का दिया है, कॉन्केव लेंस का, तो इसको हमको किस में लेना है, निगेटिव में। अब हम कंबाइंड फोकल लेंथ का जो फार्मूला होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2 के अप्लाई करेंगे। यहाँ f1 की वैल्यू 30 है, f2 की वैल्यू -20 है। इसमें एलसीएम लेंगे 60 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 - 3 और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 - 60। फिर इस f को ऊपर लिख देंगे तो 60 को भी ऊपर लिख देंगे तो -60। जब यहाँ माइनस आया इसका मतलब ये कॉन्केव लेंस बनेगा, और जो कॉन्केव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। The focal length of objective of a small telescope is 144 centimeter and the focal length of eyepiece is 6 centimeter. What is the magnification power of the telescope and what will be the separation distance between the objective and eyepiece? तो यहाँ पर ये फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का 144 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ये जो फोकल लेंथ है आई पीस का f = 6 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर हमको जो है मैग्नीफिकेशन निकालना है टेलीस्कोप में, तो -f f ही होता है। FO की वैल्यू 144 है, FE की वैल्यू 6 है, इसको डिवाइड कर देंगे -24 हो जाएगा। अब यहाँ पर सेपरेशन पूछा है, लेंथ ऑफ ट्यूब कहलाती है, L = FO + FE होगा। FO की वैल्यू 144 है, FE की वैल्यू 6 है, इसको ऐड कर देंगे तो ये 150 सेंटीमीटर होगा। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एस्टेब्लिश द रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर ए स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस है, ये यहाँ पर वायु एयर लिख देना है आपको, और यहाँ पर जो है मीडियम म्यू लिख देना है, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमको फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ करने में ये इस तरह से फिगर बना लेना है। इसके बाद हमको यहाँ पर फिगर के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देना है। लेट AP be a convex surface whose pole is P, center of curvature is C, and the object kept in its principal axis is O. Its image formed is I, and the angle of incidence is small I, and angle of refraction is small r. तो यहाँ पर आप इनको कैसे भी लिख सकते हैं, इनको हम डिटेल करके लिखेंगे। एंड अल्फा बीटा थीटा आर द एंगल्स फॉर्म्ड विद द लाइन्स ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टिंग रे। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले स्नेल्स लॉ का यूज कर लेना है। म्यू = sin I / sin r। स्मॉल एंगल के लिए हम इसको I/r लिख सकते हैं। r को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो म्यू r = क्या हो गया, I हो गया। अब यहाँ पर हमको एक्सटीरियर एंगल देखना है OMC में, तो जो एक्सटीरियर एंगल है O, और ये हो गया, इस पॉइंट का नाम M है और ये C है, तो जो एक्सटीरियर एंगल है I, और जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये इन एंगल के टोटल के इक्वल होता है, अल्फा प्लस थीटा, इसके जो डिस्टेंस वाले एंगल होते हैं उनसे। तो यहाँ पर I की जगह हम क्या लिखेंगे, I, ये देख लीजिए, I = हो गया थीटा प्लस अल्फ़ा। अब एक्सटीरियर एंगल हम ट्रेंगल IMC में देख लेते हैं, तो ये फिगर का ज़्यादा यूज है, देख लीजिए, ये है IMC, इसमें एक्सटीरियर एंगल थीटा है, तो R + बीटा के इक्वल होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे R + बीटा। अब ये सारी वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं इसमें, तो म्यू की जगह पर म्यू लिख दिए, R की जगह पर ये R की वैल्यू थीटा - बीटा पुट करना है इक्वल टू, और I की जगह थीटा प्लस अल्फ़ा ये वैल्यू पुट कर देना है। अब यहाँ पर जो एक फार्मूला होता है एंगल = R/रेडियस, यहाँ थीटा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, फिर ये थीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा की वैल्यू, पर ये I कैसे इसमें चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, इसका आर्क रहेगा ये वाला सामने जो MP, और इसका जो रेडियस रहेगा ये PC, यानी थीटा की जगह पर हम MP/PC लिखेंगे। इसी तरह से हम बीटा वाला एंगल की बात करते हैं, इसका आर्क रहेगा MP और इसकी जो रेडियस है वो PI रहेगी। इसी तरह से यदि हम अल्फ़ा की बात करें, इसका जो आर्क रहेगा MP
और इसकी डिस्टेंस रहेगी PO। तो इस तरह से सभी का आर्क तो MP है और इस तरह से हम सारे एंगल को यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये थीटा की वैल्यू हो गई, बीटा की, थीटा की और ये अल्फ़ा की, और फार्मूला है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ से जो PM सब में है इसको हम कॉमन लेंगे और इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो 1/PC 1/PI 1/PC 1/PO इस तरह से बचेगा। फ्रॉम साइन ऑफ कन्वेंशन देखें तो जो PC है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो PO है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को निगेटिव U से लिखते हैं, और PI जो है ये इमेज की डिस्टेंस है तो उसको हम V से लिखते हैं। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो देखिए म्यू की जगह म्यू, PC की जगह पर R, और यहाँ पर PI की जगह पर V, और PC की जगह पर R, और PO की जगह -U। इस तरह से वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद इस म्यू को जो है अंदर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू अपॉन R माइनस म्यू अपॉन V इक्वल टू 1/R माइनस 1/U। इसको तो कॉपी कर दिए। अब इसको 1/R को इधर लिखना है और इसको इधर लिखना है, ट्रांसपोज कर देना है। इस तरह से म्यू माइनस 1/R इक्वल टू म्यू अपॉन V माइनस 1/U। ये एक रिफ्लेक्शन फार्मूला है स्फेरिकल सरफेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है, एस्टेब्लिश द लेंस मेकर्स फार्मूला। तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमको ये डायग्राम बना लेना है। एक जो है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, एक हमको बनाना है कॉनकेव लेंस के लिए। कोई भी लेंस होता है दो सरफेस से मिलके बनता है। तो यहाँ AB सरफेस है और एक CD सरफेस है। तो यहाँ पर देखते हैं, लेट देयर बी टू स्फेरिकल सरफेसेस AB एंड CD whose radii of curvature are R1 and R2. O is a point object on their principal axis। यहाँ पर ये point object है। Whose distance is U, उसकी distance क्या है U। Whose image is I1 is formed by AB surface whose distance is V1। Then from refraction formula, तो रिफ्रैक्शन फार्मूला में हम निकाले तो म्यू माइनस 1/R इक्वल टू म्यू अपॉन V माइनस 1/U। तो यहाँ पर जो रेडियस है तो R1 है और जो इमेज का फॉर्मेशन है वो V1 है डिस्टेंस पर, तो ये V1 लिख दिए। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिमिलरली फॉर द CD surface, I1 acts as the object whose image is formed at I at distance V। then from refraction फार्मूला, तो सेम फार्मूला यूज करना है, लेकिन इस बार जो है म्यू के प्लेस पर हमको 1/म्यू लिखना है, क्योंकि लाइट रेस डेंसर से रेयर में जा रही है, मतलब ग्लास से एयर में जा रही है। शुरू में एयर से ग्लास में जाती है, फिर जब लेंस से बाहर होती है, आउट होती है, तो वो फिर जो है ग्लास से कहाँ जा रहे हैं, डेंसर में। इसलिए म्यू की वैल्यू 1/म्यू हो जाती है, और यहाँ भी म्यू की वैल्यू 1/म्यू हो जाएगी। यहाँ R की जगह R1 R2 कर देंगे, और जो फाइनल इमेज है V पर, और जो ऑब्जेक्ट है वो I1 है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे V1। कितनी चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करना है इस फार्मूले में। इसके बाद देखिए म्यू का हम पूरे फार्मूले में ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें करेंगे तो ये म्यू कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, इसमें म्यू का करेंगे तो म्यू हो जाएगा, इसमें म्यू का करेंगे तो म्यू कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, और इसमें 1 में करेंगे तो म्यू हो जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू है तो हम ये इक्वेशन फर्स्ट से ले लिए, फिर प्लस करके ये जो है सेकंड वैल्यू ले लिए, फिर इक्वल का लगाए, फिर इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू ले लिए, ये पूरी, फिर प्लस ऐड करके हम जो है ये सेकंड वैल्यू भी ले लिए। इस तरह से हमको करना है। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर म्यू -1 है, इसको कॉमन लेंगे, लेकिन ये 1 माइनस म्यू है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा करके कॉमन ले लेंगे। R1 माइनस R2 तो बचेगा। यहाँ देखिए ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1/V माइनस 1/U बचेगा। इफ़ U इक्वल टू इन्फिनिटी देन V इक्वल टू F। तो यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में हो तो उसका जो इमेज है वो फोकस पर बनता है, इसलिए यहाँ पर U को इन्फिनिटी और V को F लिखेंगे। तो यहाँ देखिए V को हम F लिख दिए, U को इन्फिनिटी लिख दिए। अब ये 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो फाइनल फार्मूला इस तरह से 1/F इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2 इक्वल टू 1/F। इधर लिख दें या उधर लिख दें, एक ही बात है। तो ये लेंस मेकर्स फार्मूला कहलाता है। Next important question is, establish the formula for the magnifying power of refracting telescope or astronomical telescope. There are two conditions when image formed at least distance of distinct vision and when image formed at infinity. The first condition is when image is formed at minimum distance of clear vision, that is at least distance of distinct vision. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप डायग्राम बनाएंगे इस तरह से। डायग्राम बनाने के बाद यहाँ से आप देखेंगे
यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर ये बीटा एंगल है ये विजुअल एंगल फॉर्म्ड है और ये विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज हो गया, और ये जो अल्फ़ा है ये विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से दो एंगल को यहाँ पर शो करना है आपको। इसके बाद यहाँ पर हमको फिगर के बारे में लिखना, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो यहाँ से फार्मूला है, इस फार्मूले से डिफाइन करना है द रेशियो ऑफ द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज टू द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो इस तरह से m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा होता है। फॉर स्मॉल एंगल we can add tan in both angle, that is tan beta upon tan alpha। अब यहाँ पर tan बीटा का मतलब है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस एंगल में ये बीटा हमारे पास बन रहा है, इसका परपेंडिकुलर a डैश b डैश और इसका जो बेस है ये है b डैश e। इसी तरह अल्फ़ा वाला जो ये ट्रायंगल है इधर बन रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर a डैश b डैश और इसका बेस जो होगा o b डैश हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमको ट्रायंगल देख करके उनकी वैल्यू पुट करना है। ये tan बीटा की वैल्यू है और ये tan अल्फ़ा की वैल्यू है। यहाँ पर जो है ये परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस है, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इस तरह से ओ बी डैश ऊपर ई बी डैश नीचे होके आ जाएगा। फ्रॉम साइन ऑफ कन्वेंशन ओ बी डैश जो है ये फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की, और ई बी डैश जो है ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की। m इक्वल टू एफ ओ अपॉन यू ई, ये वैल्यू पुट कर देंगे। ओ बी की वैल्यू ये हो गई, ई बी डैश की वैल्यू होगी ये हो गई, तो m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर करना है। फिर यहाँ पर हम लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता है। तो यहाँ पर आई पीस के लिए है, इसलिए यहाँ पर एफ ही कर दिए और यहाँ पर यू ही कर दिए। ये जो लेंस फार्मूला है उसमें u जो है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और उसको निगेटिव लेते हैं, और यहाँ पर जो इमेज की डिस्टेंस है वो v है, लेकिन कंडीशन ये है कि इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वर्जन, इसलिए यहाँ पर ये लिख दिए। अब यहाँ पर साइन को देख लेते हैं, ये माइनस ऊपर जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद इसको हम यहाँ पर ट्रांसपोज कर दिए इस साइड, तो ये हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू पुट कर रहे हैं। m की जगह पर m लिख दिया, यहाँ माइनस की जगह माइनस लिख दिया, ये एफ ओ भी लिख दिया। फिर यहाँ पर ये 1 अपॉन यू ई है, तो यहाँ देखिए 1 अपॉन यू ई की वैल्यू ये है, तो उसकी जगह पर 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से एफ ही कॉमन लेंगे तो ये एफ ही निकल जाएगा, यहाँ एफ ही नहीं था तो ऊपर लिख देंगे। इस तरह से यहाँ ये फार्मूला आ जाएगा। लेंथ ऑफ ट्यूब जो है एफ ओ प्लस यू ई है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिखें और नहीं ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इसमें केवल हमको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम इस तरह से हमको बना लेना, उधर जैसे ऊपर बना है उसी तरह से, बस ये लास्ट की लाइन को हम पैरेलल कर देते हैं। और यहाँ पर जो बाय पुटिंग यू ई इक्वल टू एफ इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो इक्वेशन फर्स्ट आप देखेंगे तो इसमें जो है यू ई की जगह पर हमको एफ ही पुट कर देना है, तो हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा एम इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ही, और लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ही। तो ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, इसको एक बार लगा करके जाइएगा। न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर से लगाना है। थैंक यू।